Good morning students, I am Neha Chavla. Today we will start our new chapter, that is microorganism, friend and foe. In general, we observe a lot of variety of organism in our surrounding, including plants and animals, which can be easily seen with our naked eye. But there is a lot of variety of organisms in our surrounding, which we cannot see them with the naked eyes. These organisms are called as microorganisms. In this chapter, we will discuss about these microorganisms, how it is helpful for us, how it is harmful for us. But before starting the properties of microorganisms, firstly we will discuss about its size. Why we call them as a microorganism? The 1 micrometer is equals to 10 raised to the power minus 6 meter. That means these organisms have very small size and even we cannot see them with the naked eye. That's why we call these organisms as microorganisms. These microorganisms are useful for us. These microorganisms are harmful for us. But we will discuss it later how it is useful and how it is harmful for us. These microorganisms are present everywhere in our surrounding, like in air, water, soil, on our body and inside our body. But due to their small size, we cannot see them. But we can check their presence in our surrounding, like we observe the spoilage of food and causing diseases to us and other organisms. Now, these microorganisms can be seen by us only with the help of microscope. So now we will classify these microorganisms into 5 groups. That 5 groups are, the very first is bacteria, second one is protozoa, third one is fungus or fungi, fourth one is algae, and fifth one is viruses. Now we will discuss about these 5 groups one by one. तो firstly we will discuss about bacteria. Bacteria जो होता है कहता है that is a single-celled microorganisms which have a recognized cell wall, but they do not have a recognized nuclear membrane or other parts. That's why we call bacteria as a prokaryotes. Bacteria also show the properties of a living being, like they feed, they move, they respire and they also reproduce. For examples, Salmonella, Rhizobium and Lactobacillus. अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं. अब अगर हार्मफुल इफेक्ट की बात की जाए तो कहते हैं बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीज हमें हो सकती है, दैट इज टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड फूड पॉइजन. The second category is protozoa. अब जो ये protozoa है कहता है actually they lives in a group as they are single-celled organisms, but they lives in group and we classify them as animals. These protozoa are basically found in the water bodies like ponds, lake, dirty water drains, sea water, etc. They are actually parasites which depend on other organisms for their food. Like some of the examples of protozoa are amoeba, paramecium and plasmodium. And the disease spread by the protozoa are dysentery, malaria, etc. The next category is algae. अब जो algae होती है that is a large group of simple plant-like organisms. अब इन्हीं algae के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. जनरली इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट से सेपरेट होता है, प्लांट से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्लांट्स की तरह इनके अंदर जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स नहीं होते. इसी वजह से जो एल्गी है वो क्या है, बिल्कुल प्लांट जैसी नहीं दिखती है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच मेक देम एज अ प्लांट. अब
जो डाई एटम्स और क्लेमिडोमोन्स हैं ये हमारी क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जबकि स्पायरोगायरा और ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमारी क्या है, मल्टीसेलुलर एल्गीज हैं। अब ये जो एल्गी होती है वो क्या करती है, ये मोस्ट ऑफ वाटर बॉडीज के अंदर रहती है, और वाटर बॉडीज के अंदर अगर इनकी अमाउंट एक्सेस हो जाती है तो ये ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी डेथ भी हो सकती है और ज्यादा एल्गी। द नेक्स्ट कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी इज फंजाई और फंगस। अब जो फंगस है कहता है दैट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which do not have chlorophyll and which do not carry out the process of photosynthesis. That means जिसमें chlorophyll नहीं होता और वो photosynthesis का process नहीं करते, but still ये जो फंजाई है वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो गला सड़ा सब्सटेंस होता है, डिकेइंग मैटर, उनसे क्या लेते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो यीस्ट है, ब्रेड माउल्ड है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलोसिस है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंगस। और फंगस की वजह से जो डिसीज हमें होती है दैट इज अ काइंड ऑफ रिंगवर्म, जिसमें क्या हो जाता है, दाद हो जाता है स्किन के ऊपर, और वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है एंड एथलीटफुल। अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 4 कैटेगरीज को पढ़ा है, जिसमें हमने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगस के बारे में डिस्कस किया। अब जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज वायरस, व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट 4 कैटेगरीज। अब इसमें क्या स्पेशलिटी रहती है, कहते हैं जो वायरस होता है, कहता है ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तभी डेवलप करते हैं जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया था, दे कैन फीड, मूव एंड रेस्पायर, वैसे वायरस जो होता है कहता है वायरस डू नॉट फीड, डू नॉट मूव, डू नॉट रेस्पायर, इट ओनली रिप्रोड्यूस। और ये जो रिप्रोड्यूस करता है वो भी सिर्फ तभी करता है जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है। अब जो वायरस है उनके एग्जांपल्स की बात की जाए तो जो हमारा HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस, एंड जो बहुत ज्यादा आजकल हम सुन रहे हैं दैट इज कोरोना वायरस। और इससे फैलने वाली जो बीमारी HIV की वजह से जो होती है दैट इज एड्स, और इन जनरल एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कॉमन कोल्ड एंड COVID-19। अब जो हम घर हैं, सभी लॉकडाउन हो रखा है, तो उसके पीछे जो वायरस है दैट इज कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी हमारे वर्ल्ड के अंदर फैल रही है दैट इज COVID-19, जिसके जनरल सिम्टम्स हैं फीवर, टायर्डनेस एंड ड्राई कफ। अब हम घर हैं तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस वायरस से, तो हमें अपने जो हैंड्स हैं वो टाइमली विद सोप एंड वाटर वॉश करने चाहिए। हमें अपनी अपने आईज, नोज और माउथ को डायरेक्टली टच नहीं करना है। अपने नोज और माउथ को कवर करने के लिए मास्क का यूज करना है और एक प्रॉपर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। So students, stay home, stay safe, study well and take care.